Verse 13, page 199. As in the body, the embodied self passes through childhood, youth, and old age, so is its passage into another body. The wise, the wise threat are not disturbed. टी ये मुझे प्रोनाउंसिएशन समझ नहीं आ रही क्या लिखा है THEREAT है ना एनीवेज The ego is continuously conscious of itself in childhood, youth, and old age. The embodied soul is uninterruptedly conscious, not only in infancy, adolescence, and old age, but also to its series of lives and deaths. The ego's alternations between the physical and the astral worlds. The soul perceives all the bubbles of states of consciousness, floating in the past, present, future, river of time. The ordinary man, without serving his sense of I-ness or ego consciousness, gradually perceives the states of infancy, youth, and old age. A sage perceives a series of lives and deaths to be different experiences in an uninterrupted consciousness of soul perception. जो हमने कल भी बात की थी कि एक 50 साल का इंसान अपने आप को जब देखता है कि मैं पहले छोटा था, फिर मैं इतना बड़ा हुआ, फिर मैं यूथ में आया, तो ही सीइंग हिज परसीविंग हिज जर्नी, और फिर वो फोरसी भी कर रहा है कि मे बी आई लिव फॉर 60 years 70 years, सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू. सो एक दृष्टा है, वो दृष्टा अपने पास्ट को भी देख रहा है, प्रेजेंट को भी देख रहा है, और वो निरंतर है. जो दृष्टा है वो निरंतर है ना. वो 50 साल पहले भी था और वो ये भी कह रहा है कि मैं 20 साल बाद भी रहूंगा. इन द सेम मैनर जो एक सेंट होते हैं वो कैसे देखते हैं, वो लाइफ और डेथ सीरीज ऑफ जो उनकी लाइव्स हुई है, दे लुक एट दैट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ दृष्टा. राइट. कि मैं निरंतर हूँ, बॉडीज चेंज हो रही हैं, तो मैं जो वो है जो निरंतर है वो कौन है, वो आत्मा है. A mortal does not experience a prenatal and post-mortem continuity of consciousness. He therefore sees the past as dark and the future as unknown. But a meditating devotee shifts his consciousness from the changes of birth and death to the changeless being in whose bosom all changes dance. He beholds all prenatal, postnatal, and post-mortem changes without being emotionally affected by them. This unattachment ensures the devotee of an everlasting changeless happiness. Those who are engrossed in change delusively expect permanent happiness from the changeable sense world. तो मतलब क्या बोल रहे हैं गुरुजी, जब आप बहुत अच्छे एडवांस्ड योगी बन जाते हो ना, तो क्या होता है, ये प्रोसेस है. यू विल रिग्रेस फर्स्ट, राइट, इन योर मेडिटेशन. यू विल स्टार्ट टू सी व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट ऑफ दिस लाइफ. आपको वो ग्लिम्सेस आएंगे, होता भी होगा ऐसा, है ना, कि अचानक से कोई सीन याद आ गया पास्ट का. फिर आप सोचोगे क्यों, बिकॉज गॉड वॉन्ट्स यू टू शो दैट देयर वॉज समथिंग फॉर यू टू लर्न. इन द सेम मैनर व्हेन यू कीप ऑन रिग्रेसिंग वन डे you can go to that state when you were in the गर्भ of your mother, and then a yogi can also see the past lives. दिस इज वाई गुरुजी इज सेइंग कि जो योगी होता है उसको पता रहता है, ऐसे पता चलता है, क्योंकि तो जब आप ये सब देख लोगे, when you will be able to perceive the future also or the vastness of this world also, then we will not be afraid of dying, no, because then we will realize that everything is eternal. So this is important to know that if I meditate well, I have this liberty to see the past,
in my meditations, right? The wise do not expect to reap everlasting happiness. और आपको ये भी पता ही होगा, जितने भी बड़े योगी होते हैं अपना पास्ट क्या, वो हमारा पास्ट भी देखते हैं। पता रहता है, बताते नहीं है ना? The wise do not expect to reap everlasting happiness from friends, beloved family, or dear possessions. The forms of loved ones are snatched away by death. Material objects turn out to be meaningless when one becomes used to them, or when in old age the senses grow unappreciative, powerless. Concentrate on the immortal spirit through meditation and find there a harvest of eternal avenue peace. Verse number 14. O son of Kunti, Arjuna, the ideas of heat and cold, pleasure and pain are produced by the contacts of the senses with their objects. Such ideas are limited by a beginning and an end. They are transitory. O descendant of Bharata, Arjuna, bear them with patience. When the frail senses wantonly consort with sensory objects, a motley throng of pain and pleasure, of warmth and chill, dances widely through the temple of life. The individual dualities in these troublesome crowds revel or sigh for a while, then finally die, leaving traces of confusion in the sanctum of the soul. Fear them not. However strong and perdurable they may seem, they come and go like bubbles on the sea of time. Ignore them or bear them with a brave, cheerful heart and even mindedness. तो गुरु जी कह रहे हैं कि जो डुअलिटीज जो होती हैं, अच्छा और बुरा, सुख और दुख, ठंडा और गर्म, पेन एंड प्लेजर, वो सब आएंगी, सबके लिए आएंगी। बट हमको क्या करना है, सिखा रहे हैं गुरु जी कि जस्ट understand that they are like bubbles on the sea of time. Ignore them. Just don't stick to those hurts and whatever you feel कि ये तो मैं भूल नहीं सकती हूँ टाइप्स चीजें, ठीक है? उनको इग्नोर करो और bear them with a brave, cheerful heart and even mindedness, remembering always that this too will pass. Everything passes. जब सब कुछ खत्म हो जाता है ना स्वप्ना? होता है ना ऐसा? जो अच्छा समय है वो भी पास हो रहा है, जो बुरा समय है वो भी पास हो जाएगा। बट अच्छे समय से क्या हम आसक्तियां लेकर आ गए? आसक्तियां बोले तो अटैचमेंट्स लेकर आ गए। बुरे समय से क्या हम द्वेष लेकर आ गए? या बुरे लोगों से हम मिले, जो लोग हमारे लिए कंड्यूसिव नहीं थे, और हमने उन समय से अगर हमने द्वेष ले लिया, तो वो समय आज भी हमारी चेतना में जीवंत है, चल रहा है। करेक्ट? लेकिन अगर हम समता में रह के आ गए, हम या फिर हमने अपने ऊपर वर्क किया, हम अब दृष्टा की भांति देखते हैं अपने पास्ट की चीजों को। जब हमें अपने पास्ट की कोई पेनफुल मेमोरी याद आती है तो हम रोते नहीं हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं, हम सजग हैं कि हम अवेयर हैं, वो जरूरी था, वो हो गया। देन एक्चुअली यू आर आउट ऑफ दोज टाइम्स, इन द टाइम एंड स्पेस। अदरवाइज यू आर स्टिल स्टक देयर एंड यू हैव टू वर्क अपॉन योर सेल्फ। क्यों हम लोग बचपन की जब हमें याद याद आती है, क्यों हम लोग वो करते हैं इतना, बचपन बहुत अच्छा था, बचपन बहुत अच्छा था, करते हैं ना? क्योंकि कहीं ना कहीं हम कंपेयर करते हैं। सो इट इज ऑल्सो डुअलिटी फ्रेंड्स, राइट? नहीं पढ़ना है पास्ट में, जो है प्रेजेंट में है वो ही बहुत अच्छा है। हम प्रेजेंट में नहीं है, इसलिए हम हमको ये लग रहा है कि मेरा बचपन बहुत अच्छा था, या जब शादी की स्टार्टिंग थी तब बहुत अच्छा था। सबका यही दिक्कत है ना? क्यों है वो? क्योंकि आप पास्ट में जा रहे हो। और हमने कल क्या पढ़ा, मैं आप लोग को वो ग्रुप पे लिख के भेजूंगी, मुझे वो बहुत अच्छा गुरुजी का सेंटेंस लगा है, पेज नंबर 197 पे, वर्स 12 से पहले जो पैराग्राफ है। फॉरगेट द पास्ट फॉर इट इज गॉन फ्रॉम योर डोमेन, फॉरगेट द फ्यूचर फॉर इट इज बियॉन्ड योर रीच, कंट्रोल द प्रेजेंट, लिव सुप्रीमली वेल नाउ, इट विल वाइट वॉश द डार्क पास्ट एंड कंपेल द फ्यूचर टू बी ब्राइट। दिस इज द वे ऑफ द वाइज, राइट? दिस इज द वे ऑफ द वाइज। उसको अच्छे से अंडरलाइन करो और बोलो, आई हैव टू बिकम वाइज, राइट? सो व्हेन वी dwell on the past, when we are thinking about the good and the bad things, we are stuck over there. So that is why we have to have the even mindedness, we have to ignore everything,
O devotee, as you are the son of Kunti, born of nature, striving to call forth the power of renunciation and divine ardor, the feminine quality of feeling still grips your consciousness, making it susceptible to dualities. But within you, awaiting divine arousal, is the positive masculine power of cosmic consciousness, your ancestral inheritance as a descendant of Bharata spirit, your true manliness of unconquerable equipoise and transcendence. The sense organs are reactively sensitive. Their nature is to respond pleasurably or painfully to stimuli. They have been conditioned to have strong likes and dislikes. Thus, liking produces enjoyment and disliking causes repulsion or pain. The sense impressions flow through the tunnel of fine nerve points, using the life force and mind as the rivers to carry them along. When good and bad, or hot and cold, material objects contact the sensitive sense organs, the result is pleasure and pain, or heat and cold. These resultant sensations are transitory, fickle, evanescent. They come and go. Man should bear them with patience, with mental evenness. That is, this mental evenness is called titiksha. They come and go. Man should bear them with patience and mental eve समता के साथ और धैर्य के साथ जब हम अपने शरीर में या सेंस ऑर्गन्स के द्वारा होने वाली सेंसेशंस के दृष्टा बनते हैं पेशेंस के साथ तब हम तितिक्षा में है तितिक्षा इज अ स्टेट राइट तो हम में से बहुत लोग हो सकते हैं जब छोटा सा चोट लगा थोड़ा सा दर्द हुआ तो बहुत ज्यादा टेंट्रम कर सकते हैं मुझे बहुत दर्द हो रहा है मुझे बहुत दर्द हो रहा है कर सकते हैं ना है ना तो धीरे धीरे हमको क्या करना है वी डोंट हैव टू उसको हवा नहीं बनाना एंड्योरेंस लानी है अपने अंदर कि क्या मैं उस फिजिकल डिस्कम्फर्ट को पेन भी नहीं है मान लो आप डिस्कम्फर्ट है आपको गर्मी में बैठना पड़ रहा है नहीं चल रहा है एसी तो क्या करेंगे राइट तो डिस्कम्फर्ट में मैं पेशेंस में हूँ धैर्य में हूँ समता में हूँ या मेरी मेंटल जो माइंड है इमोशंस है वो अप एंड डाउन जा रही है इफ इट इज गोइंग अप एंड डाउन वी हैव टू रिमाइंड आवर सेल्फ ऑफ तितिक्षा an environment enslaved body is a constant trouble to the mind holding in bondage the potentially all powerful mental faculties. So, an environment enslaved body is a constant trouble to the जो जिसने अपनी बॉडी को बहुत एनवायरनमेंट से फ्रेंडली कर लिया होता है कि मैं एसी के बिना नहीं जा सकती मैं कार के बिना नहीं जा सकती राइट या मुझे ऐसे वाले शूज पहन के ही चलना होता है टाइप्स तो वो क्या करते हैं वो माइंड के लिए ट्रबल है ऐसी ऐसी जो बॉडी है It creates the constant trouble to the mind, holding in bondage the potentially all powerful mental जो हमारी मेंटल फैकल्टीज होती है वो सब बॉन्डेज में आ जाती हैं क्योंकि हम तब क्या सोचेंगे कि अब क्योंकि मुझे कंफर्ट नहीं है तो सारा का सारा दिमाग कहाँ चला जाएगा डिस्कम्फर्ट पे In the Western world, the general tendency is to concentrate on removing external causes of discomfort. Buy a cozy warm coat if you are cold. Install a heating system even if you have to borrow the money. If the climate is hot one, install an air conditioning machine and so on. क्योंकि गुरुजी अमेरिका के बारे में ही लिखते थे अब ये इंडिया में भी ये सब कुछ चलता है ना The Eastern masters admire the Western ingenuity and inventive genius. They teach, however, that while man should adopt reasonable measures to overcome external discomfort, he should also develop a state of inner aboveness. He should not permit his mind to be adversely affected by sensations. Man experiences sensations as the feelings produced by the contact of the senses with matter. A sensation or first flowing feeling produced in the mind is elaborated initially as a perception. It is then expanded into conception by the action of the intelligence. And lastly, the conception changes into feeling, the faculty that passes judgment on the experience in terms of pain or pleasures of the body, sorrow or happiness of the mind, according to the habitual attitudes of likes and dislikes.
तो गुरुजी कह रहे कि जब भी पहले कोई सेंसेशन होती है, वो एक फ्री फर्स्ट फ्लोइंग फीलिंग होती है, और माइंड उसका एक परसेप्शन बनाता है पहले। कोई भी हम परसीव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ खाने का सोचा तो पहले माइंड परसीव कर रहा है दैट हाउ आई एम गोइंग टू फील अबाउट इट, राइट? इट इज देन एक्सपेंडेड इनटू कंसेप्शन बाय द एक्शन ऑफ इंटेलिजेंस। फिर हम उसको कंसीव करते हैं उस आइडिया को, वी डू एक्शन, वी टेक एक्शन, राइट? इवन इफ वी कुक इट और वी ऑर्डर इट, वॉट एवर, राइट? And lastly, the conception changes into feeling, the faculty that passes judgment on the experience in terms of pain or pleasure of the body, sorrow or happiness of the mind, according to habitual attitudes of likes and dislikes. And once when we have done the action, we will define the feeling. Was it pleasurable for me? Was it unpleasurable for me? And all. We will do that, right? और वो भी किस पे डिपेंड करेगा? अगेन वो उस पे डिपेंड, पर्सन टू पर्सन लाइक्स एंड डिसलाइक्स चेंज हो जाएंगे, राइट? डिपेंडिंग अपॉन what डू यू वैल्यू, what you value, what is your program. Based upon that you will like or dislike something. Therefore, the masters teach if feeling can be neutralized, made impervious to transitory dualities of heat and cold, pleasure and pain, then all experiences will be merely intellectually cognized, ideas to be properly acted upon. So important to understand कि अगर हमने जो हमको वो फीलिंग हो रही है और उस पे बेस्ड हम डुअलिटी में जा रहे हैं, ठीक है ना? जो भी हमको फीलिंग है, पेन है, प्लेजर है, हैप्पीनेस है, सॉरो है, हम उस डुअलिटी में जा रहे हैं। वॉट if I neutralize this feeling? I just experience, right? मैं सिर्फ एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि मुझे गर्मी लग रही है, या मैं ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, बट आई एम नॉट इमोशनली अटैचिंग विद दैट। द प्रॉब्लम इज व्हेन वी आर इमोशनली अटैच्ड टू दोज डुअलिटीज, our discrimination goes for a toss. Then we can't take the right decision, isn't it? क्यों? क्योंकि हम इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, चाहे वो आपका रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस हो, आपके वर्क प्लेस का एक्सपीरियंस हो, या आपके डिजायर्स फुलफिल्ड या अनफुलफिल्ड डिजायर्स का एक्सपीरियंस है, राइट? रिलेशनशिप में आप पेन और प्लेजर तो ढूंढते रहते हो बस, पेन चाहिए नहीं, प्लेजर ढूंढते रहते हो। वॉट इफ यू स्टार्ट टू सी दिस फीलिंग इज द just become neutral to the feelings which you are feeling at this moment in this relationship. I am feeling awkward, but it's okay. Don't emotionally हम तब attached होते हैं when we are too much about ourselves. So it is better not to be too much about ourselves. It is better to be too much about the guru and God. समझ रहे हो? अपने मैं बेचारी मेरा मेरा ड्रीम्स था, मेरा ये था, मेरा वो था से करने से अच्छा, एट दैट टाइम वी शुड रिमाइंड आवरसेल्फ गुरुजी ने क्या बोला। मेरी मेरी इस जगह पे गुरुजी होते तो मैं क्या करती? तो वहां पे हम इंटेलिजेंस ले आए इमोशंस की जगह। तो क्या कह रहे हैं गुरुजी? तब क्या हो जाएगा? देन ऑल एक्सपीरियंसेस विल बी merely intellectually cognized, ideas to be properly acted upon, right? Then we will know which are the ideas that we have to act upon, and which are the ideas which are just an imagination of my mind. Sometimes females do that, no? We imagine too much कि इसने मुझे ऐसे बोला तो इसलिए बोला होगा, ऐसे बोला होगा, पहले भी ऐसे ही बोला था, ये एंड दिस एंड दैट। सो वी लूज दैट इंटेलिजेंस इन आवरसेल्व्स। बेटर फीलिंग्स को वॉच करो, दृष्टा बनो। दृष्टा बनते हो तो कुछ देर में उस फीलिंग का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है, आप डुअलिटी में पढ़ने से बच जाते हो। और हमने आज स्टार्टिंग में यही पढ़ा कि जब भी हम डुअलिटी में आ रहे हैं, कर्म अकर विकर्म कुछ भी कर रहे हैं, तो हम इस कॉज एंड इफेक्ट की साइकिल में तो आ ही रहे हैं। हमको नहीं आना है, कृष्ण जी से हमने ये नहीं सीखा तो फिर क्या फायदा, है ना? तो हमको नहीं आना है, तो हमको डुअलिटी में नहीं आना है। दृष्टा बन के, ओके गुरुजी यू टेल मी व्हाट इज द राइट एक्शन दैट आई शुड टेक। और अगर हम गुरु के बारे में, किसी के बारे में पढ़ते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में, ठीक है? A stone contacting a block of ice becomes cold. A man holding a piece of ice feels cold. In both cases, the stone and the human hand become cold. But the reactions are different. स्टोन को तो फर्क नहीं पड़ेगा, उसको जलाओ चाहे उसको आइस पे रखो, क्योंकि वो फील नहीं कर सकता।
There is no doubt that there are hot and cold objects and that they produce hot and cold sensation in a body equipped with sensitivity. It is obvious, however, that the stone, unlike the human hand, possesses no inner organs of response to external stimuli. The ice on a man's hand is reported to the brain through the sensory nerves and life force as sensation. The mind reacts through perception and recognizes the sensation as cold. The preconditioned feeling then interprets the sensation as pleasurable or disagreeable, and the body responds accordingly. The coldness of the flesh is material. The cold sensation or perception is purely mental. All experiences of cold and heat, in order to be cognized as such, must first be converted into mental perceptions. A chloroformed man feels no sensations of cold when a piece of ice is placed on his hands. In short, the mind is the sole power for recognition of any bodily sensation. Sensations are powerful or powerless according to whether the mind is or is not impressed by them. Continuous impressions of cold or hot sensations gradually make the mind accustomed to them, with the result that less and less sensation of cold or heat is perceived. This is the reason why man's mind becomes acclimatized to extremes of frigid or torrid weather. A strong, controlled mind can ignore external stimuli, for no sensory sensations can be perceived by man without the acceptance and response of his mind. तो गुरु जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी सेंसेशन है, सेंसेशन तो जैसे पहले स्टोन का क्यों लिया, क्योंकि स्टोन के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं है जो उस सेंसेशन को कहीं पे रिले करेगा, ठीक है ना। फिर वो बता रहे कि जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के पास नर्वस सिस्टम है, सेंस ऑर्गन्स है जो रिले करते हैं इंफॉर्मेशन की भाई ठंड लग रही है या ये चीज ठंडा है। किसके पास जाता है वो प्रोसेसिंग? ब्रेन के पास, फिजिकली ब्रेन के पास। सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें माइंड के पास, माइंड कहता है कि ये कोल्ड है। चीजें वहां पे भी खत्म हो सकती है कि भाई ये कोल्ड है, अच्छा अब मुझे क्या डिसीजन लेना है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ठंड है बाहर बहुत ज्यादा और आप बाहर गए, आपको और ज्यादा ठंड लग रही है, तो वो सेंसेशन आपके लिए इतना काफी होना चाहिए कि ठंड है ज्यादा, तो लेट मी गो, मैं एक स्वेटर या जैकेट और पहन लूं अगर मुझे ज्यादा ठंड लग रही है। इट कैन बी दैट वे ऑल्सो। बट हमारे साथ क्या होता है, दैट फीलिंग हैज द रिपोजिटरी ऑफ अदर एक्सपीरियंसेस, राइट। कि आपको कोई फीलिंग हुई, आपको कुछ टच हुआ, या फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचो, आप अंधेरे में बैठे हो या सो रहे हो, आपके ऊपर से कुछ गया चल के। अब हो सकता है कि आप जिसके साथ सो रहे हो उसका हाथ, उसकी उंगली लग गई हो, इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। या फिर आपको ऐसे ही लगा हो कि हो सकता है चादर खिसक गई हो तो कुछ लग गया होगा। सेंसेशन है वो। But now you will respond to that sensation based upon the kind of database that you have within. So if you are afraid of snakes or lizards, say for example, सबसे पहले दिमाग में क्या आ सकता है जो जो लिजर्ड से डरता है? अरे छिपकली तो नहीं गिर गई कहीं छत छत के ऊपर से? So your response will be different than the other person जो सोचेगा कि अरे चादर खिसकी होगी इसलिए मुझे ये सेंसेशन हो रही है। तो वो जो प्रोग्रामिंग है, वो कौन डिसाइड करता है? वो आपका अंदर में जो ब्रेन में, माइंड में जो प्रोग्राम है वो करता है। सो दिस इज व्हाट गुरुजी इज ट्राइंग टू टेल हियर, दैट आवर परसेप्शन कैन स्टॉप देयर कि ओके आई एम फीलिंग अ सेंसेशन, और अगर है तो लेट मी सी व्हाट इज देयर। आई कैन स्विच ऑन द लाइट एंड सी, एंड देन आई विल डिसाइड व्हाट आई हैव टू डू। But the instincts within us, because we constantly live in dualities, this is the duality, friends. समझ में आ रहा है duality का मतलब? एक होना प्रेजेंट में होना, अभी में होना कि भाई अभी कुछ हो रहा है तो मैं क्या करूं। एक ये कि अगर ये कुछ हो रहा है तो उसे सारी पास्ट की मेमोरीज लेकर आ गए। मैं फिर से पढ़ती हूँ यहाँ से, सेंसेशंस आर पावरफुल और पावरलेस अकॉर्डिंग टू वेदर द माइंड इज और इज नॉट इम्प्रेस्ड बाय देम। तो सेंसेशन पावरफुल कब बनेगी? जब आप अपने माइंड में उसको बहुत जगह देते हो। कोई भी सेंसेशन, कोई भी थॉट, कोई भी फीलिंग,
वो तब पावरफुल हो जाता है जब आप कहते हो हाँ अच्छा फिर आ गए ये, फिर ये करेंगी, फिर ये होगा, फिर ये होगा. You are giving power to that thought. Continuous impressions of cold or hot sensations gradually make the mind accustomed to them, with the result that less and less sensation of cold or heat is perceived. This is the reason why man's mind becomes acclimatized to extremes of frigid or torrid weather. ऐसे ही आपने देखा होगा लोग ठंडी में भी अच्छे से रहते हैं, मजे में रहते हैं, क्योंकि उनको आदत पड़ जाती है. फिर वो ये कहते ही नहीं कि बहुत ठंडी है कि बहुत गर्म है. राजस्थान में भी लोग रहते हैं, पहाड़ों में भी लोग रहते हैं ठंडी में. A strong controlled mind can ignore external stimuli. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए आप. For no sensory sensations can be perceived by man without the acceptance and response of his mind. जब mind accept करता है कि ये unpleasurable है, तभी हम डिसीजन लेते, कुछ और एक्शन करते हैं. प्लेजरेबल है या अनप्लेजरेबल है. जस्ट बी न्यूट्रल. So the Eastern savants say that the influences of cold and heat, or pleasurable and painful sensations produced in the body through the contact of objects with the sense organs, can be neutralized if man can meet them with an unresponsive state of mind. This mental victory over or aboveness to the invasion of temporary sensation leads to self mastery, to the ultimate knowledge that material objects or sensory stimuli possess no inherent power over man. This is what Krishna is stressing in this stanza by the use of word titiksha, that is endurance with firmness of mind. तो आप ये नहीं बोलेंगे इसमें कि इसका मतलब मैं ह्यूमन बीइंग ही नहीं हूँ. अगर मैं पेन और प्लेजर नहीं सह रही तो फिर तो मैं ह्यूमन बीइंग ही नहीं हूँ. हम ये बोलेंगे ना. अगर मैं लाइक डिसलाइक नहीं कर रही हूँ, यू आर एक्चुअली बिकमिंग अ डिवाइन डिवाइन बीइंग, इंटेलिजेंट बीइंग. यू आर गिविंग योर सेल्फ टाइम टू रिस्पॉन्ड. अदरवाइज वी रिएक्ट लाइक एनिमल्स. अंडरस्टूड. एक कुत्ता है, अगर उसको अगर हमने डंडा मारेगा मारा, तो वो सोचेगा क्या 5 मिनट कि मैं इसको काटू नहीं काटू, भौंकू नहीं भौंकू. राइट. एनिमल धन एंड दे रिएक्ट करता है कि नहीं. बंदर को आप ऐसे मारो तो बंदर भी उल्टा उठा के मारता है. Animals, because they don't have the mind to process. So why Guruji is asking us to pause and to come out of these the stimulus of these sensations, so that we actually live like the divine human beings. We have that capacity, that we should first think, we should process, and then we should respond. आपका रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द थिंग्स ज्यादा बढ़ेगा जब आप सेंसेशन से ड्रिवन नहीं होंगे. Animals are driven by sensations. When we are too much into our lower chakra, which are related to the animalistic instincts, then we react more. Right? The yoga system of bodily discipline and endurance is not intended to be a method of self torture, but a necessary mental conditioning for lessening the disturbing effects of sensations by developing the resisting power of the mind. Titiksha does not mean rashness. If the body is sense enslaved and unspiritualized, it should be reasonably protected from harmful extremes, while mentally and gradually disciplining it to rise above its slavery. Continued catering to sensitiveness weakens the mind, thus nurturing pain and constant mental irritation. ये भी बहुत important है friends. कंटिन्यूड केटरिंग टू सेंसिटिवनेस वीकन्स द माइंड. जब हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हर चीज़ में ये बोलते हैं मुझे ये फैब्रिक नहीं चाहिए, मुझे ऐसा एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, मुझे ऐसी गाड़ी में नहीं जाना है, मुझे ऐसे लोग. जब हम टू सेंसिटिव, वेन एवर वी आर टू सेंसिटिव, what will happen to us? It will weaken our mind. Right? Mind should be strong enough to stand into any kind of situation, but the mind will become weak. Thus nurturing pain and constant mental irritation. और ये चीज आप देखो आज की जनरेशन में. राइट. हम लोग के जमाने में हम लोग सब उसी जमाने के हैं जब लाइट चली जाती थी तो अंधेरा ही होता था, घर में मोमबत्ती जलती थी. राइट. और हम लोग कितने खुश होते थे कि ये लाइट आ गई लाइट आ गई. आजकल क्या है, इन्वर्टर्स है हर जगह. बच्चों को पता ही नहीं है कि लाइट जाना क्या होता है.
राइट। हम लोग भी वैसी लाइफ हमने एंड्योरेंस सीखी है। ये ब्यूटी है भारत की ना। हमको हमको एंड्योरेंस सिखाया गया था, सो दैट हम इतने ज्यादा छुई मुई ना बन जाएं। छुई मुई कब बनते हैं? डेफिनेटली आप मेंटली बहुत सेंसिटिव हो फिर, एंड देन वेरी फिनिकी अबाउट थिंग्स। आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट। आजकल के बच्चे ये तो कर रहे हैं ना। राइट, क्यों? क्योंकि उनको सेंसिटिव बना दिया गया है towards what is pleasurable, so I will go towards that. What is unpleasurable, even if it is good for me, I will not go towards that. This is what is happening. तो बाकी का तो हम क्या करेंगे, हम अपना देख लेते हैं फिलहाल। Through ignorance, the mind of the ordinary man chooses to be a sensitive and chooses to be sensitive and to imagine itself hurt through the senses. The devotee, therefore, should lay great stress upon a mental rising above cold and heat, pain and temporary pleasures. When a cold or a hot sensation invades the body, when a pleasure visits or pain attacks, it tries to overwhelm man's mind with the idea that the sensation has an inherent power of permanence. Aware of this trick, man should try to adopt a transcendental, indifferent attitude in his response to the inroads of all sensations. जो वो सेंसेशन है उसका अपना कोई वर्चस्व नहीं है, पावर नहीं है उसकी अपनी कुछ। पावर हम देते हैं उसको। जैसे जैसे आपका माइंडसेट चेंज होता रहेगा, स्पिरिचुअलाइज्ड होता रहेगा, वो सेंसेशंस आपको इतना अफेक्ट नहीं करेंगी। When a man adopts a non excitable state towards sorrow, a non attached state toward temporary happiness, a stoicism towards irritants that rouse fear and anger and pain, his mind attains an unruffled state of poise. Verse 15. O flower among men, Arjuna, he who cannot be ruffled by these contacts of the senses with their objects, who is calm and even minded during pain and pleasure, he alone is fit to attain everlastingness. अभी पढ़ लें, समाचार तक चलेगा सबको, है ना? दिक्कत ये बुक इतनी मोटी है, खत्म ही नहीं होती है, अभी आधी भी नहीं हुई है। पर हमें तो लग रहा है जब तक चलेगा अच्छा है। हम तो मतलब आपकी एनर्जी से जुड़े हुए हैं, हमें तो वो भी खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर दैट जर्नी, बट मुझे लगता है कि कब खत्म होगा, मेरे को तो लगता है गुरुजी मेरे को 2.5 साल तक ऐसे ही रखेंगे। पर अच्छा है, वो युक्तेश्वर जी भी कहते हैं कि सिर्फ एक पढ़ो और उस पे मनन करो तो बहुत टाइम तो लगेगा ही। हाँ, दे वो अच्छा है बिल्कुल। एक्चुअली क्लेवरनेस क्या करी गुरुजी ने, सीमिंगली तो 2 वॉल्यूम बनाए हैं, बट आप उसके टेक्स्ट का वो देखो साइज, है ना? आरती जी, इतना छोटा टेक्स्ट है कि इसकी 4 वॉल्यूम बन सकते हैं अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट रखोगे। तो गुरुजी ने बोला 2 वॉल्यूम तो दिए बेटा, मैं तुम्हें आराम से पढ़ो। चलो। That blessed being who is unchanged like the anvil under the hammer stroke of trials, the one who is even minded during both cloudy winter days of pain and sunny springtime days of pleasure, the one who calmly absorbs trials into himself as the sea quietly swallows rivers, he is ordained by the gods to attain the eternal kingdom. मतलब फाइनली जो समता में रहता है किसी भी तरह की परिस्थिति में, उसको ही इज एबल टू अटेन द एटर्नल किंगडम ऑफ गॉड। ठीक है स्वप्ना, इट्स ओके। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन इज डुअलिटी। इफ वन नोज प्लेजर ही मस्ट नो पेन, वन हु cognizes heat must cognize cold also. If creation had manifested only heat or only cold, only sorrow or only pleasure, human beings would not be human beings would not be the irritated victims of the pranks of duality. But then, what would life be like in a monotone existence? Some contrast is necessary. It is man's response to dualities that causes his trouble.
So long as one is slavishly influenced by the dualities, he lives under the domination of the changeful phenomenal world. Man's egoistic feelings, expressing as likes and dislikes, are entirely responsible for the bondage of the soul to the body and earthly environment. तो जितना आपके अंदर likes and dislikes हैं उतना ज़्यादा soul आपकी it is bonded to the earthly environment. His cognizing intelligence is a mere registrar of experiences in a disinterested academic way. It records the events of a dear one's death or the birth of one's child alike in the same honest, prosaic manner. Whereas intelligence simply informs human consciousness about its loss of a dear friend, feeling marks and classifies this experience as distinctly painful. Likewise, the birth of a baby, cognized by an interested human consciousness, is classified by feeling as a distinctly pleasurable experience. तो गुरुजी कह रहे जो हमारी इंटेलिजेंस है वो तो सिर्फ हर एक्सपीरियंस को रजिस्टर कर रही है, वो गुड और बैड नहीं बोल रही है। हम उस एक्सपीरियंस से क्या फीलिंग महसूस करते हैं, वो फीलिंग उस पे पेन या प्लेजर का ठप्पा लगा के अटैच कर देती है। और जितने ज्यादा हमारे अंदर डुअलिटीज होगा उतना ज्यादा हमारी सोल अर्थ बाउंड रहेगी, क्योंकि जितनी डुअलिटीज है उतना हमारे अंदर राग द्वेष है। राइट, जितना राग द्वेष है, राग द्वेष किसको है? ये जो पर्सनैलिटी है जो ये सोचती है कि मैं ये बॉडी हूँ। राग द्वेष इसलिए है, तो जब उस राग द्वेष से मैं अटैच्ड हूँ तो मैं वापस भी इसलिए इस धरती पे बार बार आ जाती हूँ। ठीक है, जैसे हम ईएफटीपी भी हम क्या करते हैं, हम क्या सीखते हैं उसमें कि हमको न्यूट्रलाइज करना है। जिस थॉट के साथ एक इमोशन जुड़ गई है, हम जब ईएफटी कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसके साथ जुड़ी हुई इमोशन को न्यूट्रलाइज तो कर रहे हैं। जब हम इमोशन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो वो जो थॉट है वो सिर्फ एक थॉट रह जाता है। अब जब आप उसके साथ फीलिंग जोड़ोगे तब वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेगा, क्योंकि तब आप डुअलिटी में आ जाओगे। जब वो सिर्फ एक थॉट है, आपने फीलिंग नहीं जोड़ी, तो वो डुअलिटी में नहीं आया, तो इट जस्ट रिमेन्स इन योर इंटेलिजेंस एज अ थॉट ओनली। वन डे ऑफ कोर्स कॉजल वर्ड है वो थॉट्स भी हमको खत्म करने, राइट। बट पहले इमोशंस, इमोशंस फीलिंग्स को बहुत समझना है और वो ठप्पा लगाना छोड़ना है हर एक चीज पे, हर एक सिचुएशन पे, गुड और बैड, राइट और रॉन्ग का। The psychological twins, man's feelings of pleasure and sorrow, have a common father. They spring from desire. Of course, fulfilled desire is pleasure and contradicted desire is pain. सब कुछ डिजायर से ही है। जो मेरे मन का हो जाता है तो वो प्लेजरेबल है, जो मेरे मन का नहीं होता वो मेरे लिए सॉरोफुल है। They are inseparable, just as night inevitably follows day. As the earth revolves on its axis, so pleasure and pain revolve on the axis of desire, the one ever alternating with the other. Desire is produced by indiscriminate contact with the objects of the senses. Expressing as the likes and dislikes of the ego, desire creeps into the consciousness of one who is not watchful enough in governing the reaction of his feelings to his various experiences in the world. तो जो हमको लाइक्स और डिसलाइक्स हो रहे हैं उसके अनुसार हमारे अंदर डिजायर बनते हैं, और वो डिजायर किसके अंदर क्रीप इन करता है? जो वॉचफुल नहीं है उस वक्त, राइट, कि मैं किस चीज को सही मान रहा हूँ, मैं डुअलिटी में हूँ या मैं दृष्टा हूँ। जब हम वॉचफुल नहीं होते हम तब डुअलिटी में होते हैं, और हम उस एक्सपीरियंस को गुड और बैड या प्लस माइनस में करके अपनी कॉन्शियसनेस में स्टोर कर लेते हैं। इट इज अ कंडीशन द ईगो इम्पोजेज ऑन इटसेल्फ and is therefore detrimental to man's even mindedness. Whatever has its origin in desire is a disturbing element, for desires are like stones pelted into the calm lake of consciousness. Attachment to pleasure or aversion to pain both destroy the equilibrium of the inner nature. हमारी इनर नेचर को कौन डिस्टर्ब कर रहा है? कि हमको सिर्फ जो हमको प्लेजरेबल लग रहा है वो रहे, जो हमको अनप्लेजरेबल लग रहा है वो हट जाए, क्योंकि हम इस डुअलिटी में फंसे हैं। दैट इज वाई
This attachment to pleasure or aversion to pain both destroy the equilibrium of the inner nature. तो अब आपको समझ में आ रहा है हम लोग समता में क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि हम हर एक चीज को किसी ना किसी उसमें रख रहे हैं, पेन प्लेजर गुड बैड में रख रहे हैं। तो जब हमने ऑलरेडी अपने अंदर डुअलिटी बनाई है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, तो हमारा माइंड भी तराजू की तरह कभी इधर घूमता रहेगा। अब हमको ये सीखना है कि हमको गुड बैड पेन प्लेजर माइंड देयर ये नहीं करना है, समता में दृष्टा की तरह दृष्टा भाव लाना है ज्यादा। जितना हम दृष्टा भाव लाएंगे उतना इजी होगा हमारे लिए प्रत्यक्ष जीवन में इवन माइंडेड होके रहना, समता में रहना। Recognizing the inseparability of the opposites, the masters of India deem that even pleasures, being temporary, are harbingers of pain. Pleasures that comes like a brief straw fire to illumine a dark heart with a message of joy, and then suddenly dies down only deepens the original sorrow. This is why the Gita teaches that the excitation of pleasures should be avoided as avidly as one seeks to avoid the unpleasantness of pain. Only when feeling is neutralized toward both opposites does one rise above all suffering. It is very difficult indeed to hurt an ever smiling wise man. तो गुरुजी कह रहे हैं कि जो प्लेजर है, प्लेजर भी क्योंकि क्षण भंगुर है। हम कहते हैं ना सुख और दुख, सुख आता है दुख, सुख जाता है तो दुख आता है, दुख जाता है तो सुख आता है, वो चलता रह रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर प्लेजर है तो वो भी हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब वो प्लेजर खत्म होगा तो फिर से आपको दुख की अनुभूति हो जाएगी और दुख अब ज्यादा होएगा। और तो इट इज बेटर, दैट इज वाई ऋषिज हैज सेड दैट इट इज बेटर टू बी इनटू। हमेशा से सुना होगा आपने, पहले के लोग तो ये बोलते हैं भाई खुशी में ज्यादा खुश मत हो और दुख में ज्यादा दुखी मत हो, क्योंकि ये जो खुशी आई है वो भी खत्म हो जाएगी एक दिन, जो दुख आ रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट गुरुजी इज सेइंग। इन ऑर्डर टू attain mental aboveness, man must practice a neutral attitude to all earthly changes. Many people reason, oh, well, if I cultivate a neutral attitude, how could I enjoy life? सब ये कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि फिर मैं लाइफ को एंजॉय कैसे करूं जब मेरे को न्यूट्रल ही बनना है, दृष्टा ही बनना है। The answer is a matter of logic. Even though we enjoy pleasure after pain, still it seems hardly reasonable that in order to appreciate health, we should first undergo accidents and disease, or that in order to enjoy peace, we should first experience excruciating mental suffering. Friendship may surely exist between two persons without their first indulging in enmity. The mortal way, therefore, of taking life as it is, of accepting as inevitable the periodical incursions of pain and pleasure, is not the right way of carrying on this mundane existence. The saints have found that happiness lies in a constant mental state of unruffled peace during all experiences of earthly dualities. A changeable mind perceives a changeable creation. हाँ, कितना अच्छा बोला है ये। A changeable mind perceives a changeable creation and is easily disturbed. The unchangeable soul and the unruffled mind, on the other hand, behold, being the masks of change, the eternal spirit. जो हम पिछले कुछ पेजेस में हम जब पढ़ रहे थे कि टिल द टाइम वी आइडेंटिफाई विद दैट विच इज चेंजिंग, वी विल ऑलवेज बी इनटू डुअलिटीज, वी विल ऑलवेज बी इनटू पेन एंड प्लेजर। रिमेंबर फिर गुरुजी ने क्या बोला था कि हमारा गोल क्या है कि वी शुड गो टुवर्ड्स अ सोल रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, बिकॉज व्हेन वी गो टुवर्ड्स द सोल we will realize that it is never changing, it is eternal, and then we will be able to see the life from that perspective that nothing is changing। ठीक है। तो अब उसी में वो बता रहे हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है नॉन डुअल बनना, क्योंकि जब आप डुअलिटीज में हो तो आप चेंज के साथ हो हमेशा। कि पहले जब लाइफ की जैसे बचपन अच्छा था अभी थोड़ा ठीक है, या शादी से पहले अच्छा था अभी थोड़ा ठीक है, तो हम किससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? जितनी बार भी हम डुअलिटी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वी आर आइडेंटिफाइंग आवरसेल्फ विद दैट विच इज चेंजिंग। करेक्ट। द मोर वी लर्न टू बी अ द्रष्टा, so drashta within me is a constant, it is not affected by good or bad, so I am learning to be with that which is unchangeable।
मेक सेंस? तो वो आत्मा अनुभूति हो गई ना। जब आप दृष्टा होके देख रहे हो, वो आत्मा जो आपके भीतर बैठी है, वो भी तो दृष्टा की तरह सब कुछ देख रही है ना। आपके साथ होने वाली खराब चीजें भी, आपके साथ होने वाली अच्छी चीजें भी। वो किसी को अच्छा या बुरा नहीं बोल रही है, ना आत्मा ना परमात्मा। तो जब हम दृष्टा बनने की प्रैक्टिस करते हैं, तो हम एक्चुअली में जो हमारा आत्म स्वरूप है, हम उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो उसको शुरू कहाँ से करेंगे कि जब ध्यान में बैठते हो, ध्यान में जितने भी आधा घंटे 15 मिनट 20 मिनट जो भी बैठते हो, तो ध्यान के वक्त होने वाली अनुभूतियां, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल इमोशनल हो, उसके दृष्टा बनो। समझ गए? अभी तक तो क्या कर रहे थे कि भाई प्यास लगी तो पानी पी लिया, पाँव में दर्द हो गया तो उठ गए, या ज्यादा थॉट आ रहे तो बस ठीक है आज 10 मिनट ही कर लेती हूँ, नहीं हो पाएगा। पहले तो अब इतना कर रहे थे ना। आज से क्या करना है? आज से उसका जितना, जो चीज सटल में प्रैक्टिस करोगे, वो मैटर में उतना प्रैक्टिस करना आसान होता है। तो ध्यान में जितना दृष्टा बनोगे, जो विचार आ रहे हैं गुस्सा नहीं करना अपने ऊपर कि क्यों विचार आ रहे हैं। बस मैं दृष्टा हूँ, ठीक है आते रहेंगे ये विचार। मुझे तो फिर से अपने, जो भी आपका ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है ध्यान में, आप जिस पे भी करते हो, चैंटिंग करते हो, थर्ड आई पे करते हो, ब्रेथ पे करते हो, जहां पे भी कंसंट्रेट कर रहे हो, अपने आप को बोलो कि मुझे तो यहाँ कंसंट्रेट करना है। बाहर से कोई आवाज आ रही है, घर में कोई आवाज कर रहा है, दृष्टा बनना है। ठीक है, ये हो रहा है, बट वेयर डू आई नीड टू कंसंट्रेट? आई नीड टू कंसंट्रेट ऑन माई ब्रेथ और माई थर्ड आई, वेर एवर वट एवर यू आर डूइंग। ठीक है। जब ऐसे दृष्टा बनोगे सूक्ष्म में, तो यही हैबिट अपने आप से बाह्य जगत में इजीली आएगी। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं 3 बजे। आज के लिए इतना ही। प्रार्थना कर लेते हैं। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादत् पृष्ठस्ते। नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। ओम शांति शांति शांति। चलो जी, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर द रिसेप्टिविटी। सी यू टुमारो। थैंक यू थैंक यू। प्रियंका। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रियंका जी। कृष्णा। जय गुरु दी, थैंक यू सो मच। Thank you, everyone. बाय। थैंक यू। थैंक यू।